happy and healthy. So today we are going to revise the topic which I had explained you in the live session of maths on Saturday. But on Saturday I noticed that very less number of students were there in the live session. Mind you, you were busy to attend the wedding ceremony of the peoples because it was Vasant Panchami. Yes, madam. And in our tradition, Vasant Panchami is the very good day and maximum wedding ceremonies or other type of rituals are there. So my dear people were busy. I was not busy and that's why I took the live class on the regular time. So today we are learning actually chapter number 12, which is ratio and proportion. And in this we had learned about the concept of proportion on Saturday, and I explained at least one question of each type which are given in the exercise 12.2. Okay, 12.2, page number is 285 I suppose. Yes. 255. 255 तो मैंने हर एक क्वेश्चन में से एक सम आपको एक्सप्लेन किया था एंड देन आई टोल्ड यू टू कंप्लीट द होल एक्सरसाइज बाय योर ओन. Okay, and I am getting a response that you people had not done. So you do it just now. आप लोग करो. Question number 1, I am going to repeat you. First question is, what is given that? Determine if the following are in proportion. Okay, I would like to ask you one thing. How many of you have not watched the video? Video means live stream तो you didn't attempt it. That is okay, confirm. But आप लोगों ने वो वीडियो भी नहीं देखा है. इससे कितने बच्चे हैं क्लास में? सैटरडे का लेसन देखा ही नहीं. How many of you are there? भास्कर ने नहीं देखा. आपका बॉडी लैंग्वेज बता रहा है. बराबर है ना. तो आप लोगों ने वो वीडियो भी नहीं देखा तो फिर आपको तो ये मैं जो बात कर रही हूँ वो तो ऊपर से जा रही है क्योंकि पता ही नहीं है कि मैडम क्या बोल रही है. एक बात बता दूं, आप इसको जितना इजी लोगे ने, जितना भी इजी लोगे ने, उतना लॉस किसको है. और हमें ये पता है कि यहाँ पे हमें लॉस है फिर भी हम कर रहे हैं तो आर वी फुलिश. मुझे पता है कि यहाँ पे खड्डा है फिर भी मैं वहां पे जंप कर रही हूँ तो वो तो फिर मैं फुलिश हूँ ना. Ask this question to you. Are we foolish? Because सैटरडे गया, संडे गया, आज मंडे हो गया. सैटरडे को मैंने by 12 o'clock I suppose I completed my session. 12 बजे तक वो कंप्लीट हो चुका था. तो सैटरडे 12 o'clock से लेके यस्टरडे नाइट देख लो. चलो 10 बजे आप सोए होंगे, बराबर है. तो भी 36 आवर्स हो गए. वहाँ पे आप लोगों ने नहीं देखा वो वीडियो क्योंकि what you have you don't have value of it. और यही समझने के लिए अभी जो मैंने बताया ना वो वर्कशॉप करना तो पता चलेगा. तो वीडियो भी नहीं देखा है तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पे दैट इज गिवन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज 12.2 और वहाँ पे प्रपोर्शन की बात की गई है. प्रपोर्शन मीन्स प्रपोर्शन इज यूजफुल टू कंपेयर टू रेशियोज. जैसे रेशियो इज यूजफुल टू कंपेयर द इंफॉर्मेशन एंड टू गेट द आइडिया कि विच इज गुड फॉर अस. रेशियो का वीडियो तो देखा होगा ना कि वो भी बाकी है. रेशियो का वीडियो देखा है कि नहीं देखा है कि वो भी बाकी है. So ratio is useful to compare the information which are given to us. As the example was given in that video, if we went to the shop to buy something
Okay, and if we want to compare it, if the shopkeeper offers us different rate, suppose you need pen and you visit a shop, stationery shop, and if the shopkeeper shows you different types of pen with its rate, then we have to decide which is according to my budget and which is I can afford. Got it? ये एक्सपीरियंस तो सबको है और वो डिसीजन हम एवरीडे लाइफ में लेते हैं, बट वी डोंट हैव आइडिया कि विच logic we are applying over that, and that logic when we compare the information, that is ratio. And now how to compare two ratios and what is the need of compare the ratios, that is given in the proportion. अगर दो रेशियो, हमको दो मटेरियल दिया गया है, दो इंफॉर्मेशन दी गई है और आर दी इन द प्रपोर्शन, तो वो हमको समझना है, तो उसके लिए क्या करना है? आई एम कमिंग डायरेक्टली ऑन द पॉइंट एंड आई सजेस्ट यू ऑल पीपल टू वॉच द वीडियो एंड गेट द आइडिया अबाउट द प्रपोर्शन. भले ही आज मैं रिपीट कर रही हूँ, लेकिन आपको वो करना जरूरी है. ठीक है, तो वीडियो देख लेना. और प्रपोर्शन जो है वो क्या करता है? प्रपोर्शन कंपेयर्स. प्रपोर्शन का नॉलेज इसलिए जरूरी है कि इट कंपेयर रेशियो. वो क्या करता है? रेशियो को कंपेयर करता है. सपोज हमारे पास, मेरे पास दो रेशियो है. मेरे पास ऐसा रेशियो है कि 15 kg रेशियो 25 kg, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सपोज कि 10 रुपीज 10. ओके, एंड मैं लिखती हूँ रेशियो उसके साथ लिखती हूँ ₹25 फॉर एग्जाम्पल. तो ये रेशियो जो आएगा 15/25. 5 3s are 15, 5 5s are 15. 3:5 is the reduced form of this ratio. Okay, and here 10:25. 5 2s are 10, 5 5s are 25. So 2:5 is that. Okay, now here this fraction and this fraction are equivalent or not? 3/5 and 2/5 are equivalent or not? Are these two ratios equivalent? I am asking the simple question. Yes or no? No. No, they are not equal. That's why we can say that 3:5 is not equal to 2:5. जब इस तरह से हमको रिजल्ट मिलता है, we can say that these ratios are not in proportion. ठीक है, यहाँ पे हम ऐसा ले सकते हैं. और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ₹10 I'll take ₹18 and ₹25. So 18/25, तो वो हो जाएगा 6 3 आएगा ना? क्या आएगा? मुझे तो 3 चाहिए कॉमन, नहीं हमको तो 5 कॉमन चाहिए ना. यहाँ पे 3:5 हमें लेना है. 3:5 हमारा आंसर आना चाहिए. तो 3:5, तो 6 3s and 6 5s, तो let me take 30. तो 18/30 means 6 3s and 6 5s. So 3:5. So this 3:5 and this 3:5 are equal. These two are equal. So we can say that these ratio 15:25 and 18:30 are in proportion. कैसे लिखेंगे ये दोनों को? ये दोनों proportion में नहीं है, लेकिन ये दोनों proportion में है. तो how could we show it? With the mathematical symbol. Let us understand. So basically, what is in proportion? 15 kg ratio 25 kg
and rupees 18 and rupees 30 are in proportion. We can say that these are in proportion. How could we show it? So we can show it 15 kg ratio 25 kg is in proportion to rupees 18 ratio rupees 30. This is the symbol to show the proportion. जैसे हम रेशियो के लिए 2 डॉट का यूज करते हैं, वैसे प्रपोर्शन के लिए 2 टाइम्स हमको रेशियो का जो सिंबल है वो यूज करना है. दिस सिंबल इट शोज अस प्रपोर्शन. हमको वो प्रपोर्शन शो करता है. हाउ टू रीड इट? कैसे स्टेटमेंट रीड कर सकते हैं? तो 15 kg रेशियो 25 is in proportion to ratio 18 proportion to rupees 18 ratio rupees 30. In this way we can read it out. So what proportion does it? So proportion concept is given us to compare the ratios and to get the idea that given terms are in proportion or not. What is the methodology? Just reduce the given fraction. ये बेसिकली ओरिजिनल फ्रैक्शन है, हमने उसको रिड्यूस किया, we got 3:5. Same way, this one is the basic ratio and we simplify it, we get the reduced form 3:5. If after reduce the ratio, you get the same information or the same ratio, then we can see that these terms are in proportion. अगर जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया यहाँ 10 and 25 रुपीस का, वहां पे 2:5 आया तो वो प्रपोर्शन में नहीं था. बट दीज 2 टर्म्स आर इन प्रपोर्शन. गॉट इट? अभी जब भी 2 रेशियोज प्रपोर्शन में होते हैं तो देयर आर हाउ मेनी टर्म्स? 4 टर्म्स. हियर आल्सो 4 टर्म्स व्हिच आर 15 kg, 25 kg, rupees 18, rupees 30. These 4 terms are there. Okay, in order I am writing it. So number 1 and number 4 position पे जो भी terms है उसे हम mathematical form में बोलते हैं extreme terms. क्या बोलते हैं? Extreme terms. Which are extreme terms over here? तो 15 kg and rupees 30 are extreme terms. And जो number 2 and number 3 है are known as middle terms. Okay, what is here? 25 kg and rupees 18 are middle terms. So this information I had explained in the last period, which was conducted on Saturday. Saturday को हमने जो ये किया, that is proportion, and then after I started the explanation of 12.2, and this information is given in the box and bold letters on page number 255. See, definition is given on 254 in the bold letters, that if 2 ratios are equal, we say that they are in proportion and use the symbol, this symbol, okay, symbol, or equal to equate the 2 ratios. This is the definition of proportion, and the detail about the extreme terms and middle term is given on page number 255, first one paragraph. Yes, if 2 ratios are not. If 2 ratios are not equal, then we say that they are not in proportion. In a statement of proportion, the 4 quantities involved when taken in order are known as respective terms. First and fourth terms are known as extreme terms, and second and third terms are known as middle terms. So this information I had explained on Saturday, and then I had given to solve exercise 12.2. Now question 1 in the exercise 12.2. Read it out. चलो first one read करो.
determine if the following are in proportion. A 15, 45, 40, 120. Okay, so 4 terms are given here. Yes. Okay, so how to find it out that the given terms are in proportion or not? कैसे ढूंढोगे? कैसे ढूंढोगे? जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया उस हिसाब से कैसे ढूंढोगे? यस, उनका रेशियो निकालते मींस या हमें उनके नंबर को रिड्यूस फॉर्म में करना है. या हाउ विल यू डिसाइड द रेशियो? रेशियो कैसे निकालोगे? क्वेश्चन ए में यहाँ पे 4 टर्म्स आर गिवन, 15, 45, 40, 120. हाउ विल यू डिसाइड द रेशियो? किसके साथ किसका रेशियो बनाओगे? 15 के साथ 120. 15 के साथ 120, 45 के साथ 40. नो, रेशियो वो नहीं था. एक्सट्रीम टर्म्स में हमने जो 1, 2, 3 एंड 4 ली, रेशियो कहाँ पे था? 1 एंड 2 के बीच में एंड 3 एंड 4 के बीच में रेशियो था ना. भले ही 10 means first and fourth are extreme terms and 2 and 3 are middle terms, but ratio जो निकलता है वो first extreme first middle के बीच निकलता है and second middle and second extreme के बीच निकलता है. ठीक है, तो जब रेशियो बनाते हो तो फर्स्ट 2 टर्म्स एंड लास्ट 2 टर्म्स का रेशियो होता है. सो हम क्या करते हैं? 15 रेशियो 45 करोगे तो 15 ones are 15, 15 threes are 45. So ratio is 1 ratio 3. Same way 40 ratio 120. तो 40 ones are 40, 40 threes are 120. So it is also 1 ratio 3. So both the ratios are equal. So we can say that यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? Determine if the following are in proportion. So we can say that 1 ratio 3 is equal to 1 ratio 3. तो ये 1 ratio 3 किसका आया? 15 ratio 45 is equal to 40 ratio 120. Or we can show it in the proportion form also. 15 ratio 45 is in proportion to 40 ratio 120. Got it? Determine करना है, मानिए आंसर हमारा yes और no में आएगा. So we can write it कि yes, these terms are in proportion. समझ में आया? मैंने एक एक्सप्लेन किया था, बाकी खुद करने के लिए बोला था. तो आज भी मैं वही कर रही हूँ क्योंकि आई एम रिपीटिंग द होल क्वेश्चन मीन्स होल टॉपिक. तो मैं वही कर रही हूँ. बाकी के जो बी सी डी है वो आपको खुद करनी है. बी सी डी ई एफ 4 terms are given everywhere. So you have to make the ratio of first and second and third and fourth and then reduce it. And after the reducing, if you get both the ratios same, then you have to write down yes. And if not, then you have to write down no. Clear? Yes. चल नंबर 2 जो है write true or false against such each of the following statement. यहाँ पे भी हमको वही क्या है? Only form is different. क्वेश्चन का फॉर्म जो है वो डिफरेंट है. यस, नंबर 2 में मेथड हर एक जगह पे दिखा है. 16 ratio 24 proportion to 20 ratio 30. 16 ratio 24 is in proportion to 20 ratio 30. We have to find out okay, is this true or not. Terms are already given in proportion. We have to check it out. What to do? 16 ratio 24. 8 2s are 16.
8 3s are 24. 2:3 is the reduced form of this ratio. And 20:30. So you will get 2 tens and 3 tens. So 2:3 is the reduced form of this. So we can see that this statement is true. Got it? मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, अगर इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो तो आपकी नोटबुक में अनइक्वल है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि 2:3 is equal to 2:3. That's why the statement is true. Got it? Yes. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 सबको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कितने हैं क्वेश्चन? B, C, D, E and F। अभी आपने सैटरडे संडे का टाइम वेस्ट कर दिया तो आज आप ओवरलोड हो जाओगे। आज आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। समझ में आ गया? दिस क्वेश्चन नंबर 2। गॉट इट? जहाँ पे प्रपोर्शन का सिंबल दिया है उसके आगे जो रेशियो है उसको रिड्यूस करो और बाद में जो रेशियो है उसको रिड्यूस करो। अभी रिड्यूस करने के लिए आई एम तो हैबिचुअल, दैट्स व्हाई आई नोट इट 8 2s 8 3s, ये आपको पता आना चाहिए। और इसके लिए आपके डिफरेंट नॉलेज को मैं यूज कर रही हूँ। कौन सा? फर्स्ट इज टेबल, मल्टीप्लिकेशन टेबल, सेकेंड इज डिविजिबिलिटी टेस्ट and third is factors. फैक्टर्स का जो नॉलेज है ये मैंने फैक्टर्स ही निकाले 16 के और 24 के। बट कैसे निकाले कि मैंने ये सोचा कि कौन सा टेबल है जहाँ पे 16 एंड 24 बोथ आर कमिंग, तो एक के टेबल में दोनों आते हैं। यहाँ पे भी मैंने सोचा कि 20 एंड 30 कौन सा टेबल है जहाँ पे दोनों आते हैं, तो 10। अगर इस तरह से समझ में नहीं आए तो ये भी मैंने बताया है आपको कि क्या करना है, तो 16 के फैक्टर्स निकालो। ठीक है, 16 के फैक्टर्स निकालो, सिंपल मेथड विदाउट एनी कंफ्यूजन, है ना। जिनको नहीं आता है उनको क्या करना है, ये फैक्टर्स तो आते हैं तो 16 के फैक्टर्स निकालो। सेम क्या करो, 24 के फैक्टर्स निकालो। मैडम की पेन इसलिए कर रही है, घूम रही है स्पीडीली, क्योंकि मुझे पता है डिविजिबिलिटी टेस्ट भी पता है, फैक्टर्स भी पता है, तो वो मेरी जो पेन जो है वो स्पीडीली चल रही है। अभी क्या करना है, ये डायरेक्टली नहीं लिखोगे तो क्या करेंगे हम, 16:24 में आप 16 के जो भी फैक्टर्स आए उसे लिख दो। हाउ मेनी टाइम्स 2 इज देयर, 4 टाइम्स, एंड हियर क्या हो गया, 3 टाइम्स 2 and 1 time 3, कॉमन कॉमन कॉमन, क्या छूट गया, 2:3। यू गॉट इट? तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये तो बहुत प्रैक्टिस करोगे उसके बाद दिमाग में आएगा, क्लिक होगा। अगर वो क्लिक नहीं होता है तो व्हाट टू डू, जस्ट फैक्टराइज द गिवन नंबर्स, राइट डाउन द फैक्टर्स इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, take out the common factors and write down the remaining factors in the reduced form. ये मेथड समझ में आई? जिनको ये एक कहाँ से आया वो नहीं समझ में आए वो स्टूडेंट्स ये मेथड अप्लाई करें, चाहे कोई भी नंबर हो। बराबर है? हम डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ चुके हैं, कौन से नंबर की, 1 to 1 की डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं है, 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। 2 की हम पढ़े, 3 की पढ़े, अभी 2 की पढ़े तो 4 की भी हमने ऑटोमेटिकली वहां पढ़ ली, 5 की, 6 की भी पढ़े, 11 8 की भी पढ़े हम, बराबर। तो वो डिविजिबिलिटी टेस्ट आपकी टेक्स्ट बुक में ही है। और एक बात और बता दूं, मैथ्स की टेक्स्ट बुक कभी भी रत्ती वाले को नहीं देना, मैम मेरे पास स्टैंडर्ड 2 की, क्योंकि मैथ्स की टेक्स्ट बुक आपको हर साल
जो है वो काम में आएगी। ये टेक्स्ट बुक अगर जो है वो आपकी एंड तक चले बराबर। तो यही टेक्स्ट बुक में हमने आगे के चैप्टर्स में डिविजिबिलिटी टेस्ट भी पढ़ी है और हमने फैक्टर्स भी पढ़े हैं। जिनको नहीं रिकॉल होता है वो चैप्टर वापस रिवाइज करें। और मेरे सारे वीडियोस तो चैनल पे है। समझ में आ रहा है व्हाट आई मीन टू से? बराबर। तो वो दोनों लॉजिक को यूज करके आप इस तरह से फैक्टर्स निकाल के भी रिड्यूस्ड फॉर्म ढूंढ सकते। ये कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 2 आई एम टॉकिंग अबाउट। चलो क्वेश्चन नंबर 3, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू? सेम बात है लेकिन वहां पे यहाँ पे डायरेक्टली प्रपोर्शन सिंबल में दी थी, यहाँ पे मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया है विथ इक्वल टू साइन। लॉजिक सेम है। अगर आप मेरा वीडियो देखोगे ना सैटरडे का, वहां पे मैंने एंड में यही बोला है कि लॉजिक हर एक जगह पे सेम है, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करती। तो यही लॉजिक रहेगा क्या कि रेशियो बनाओ, उसका रिड्यूस फॉर्म निकालो, रेशियो कंपेयर करो, अगर वो सेम है तो प्रपोर्शन में है, नहीं है तो नॉट इन प्रपोर्शन। वही लॉजिक ये क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमको लगाना है। व्हाट इज गिवन देयर इन क्वेश्चन नंबर 3 कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो वहां पे भी वही करो। वहां पे मैंने 2 क्वेश्चन शायद एक्सप्लेन किए थे, क्योंकि एक पे डेसिमल नंबर है या 7.5 लीटर वाला, तो वो भी मैंने सॉल्व करवाया था। लेकिन हु कैस, टीचर तो बोलते रहते हैं हमको क्या करना है। चलो तो हम वही ले ले। फर्स्ट आप कर लेना, सेकंड में एक्सप्लेन कर देती हूँ, हमारे पास इतना टाइम नहीं बचेगा। ठीक है, तो बी लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 का बी हमने यहाँ लिया है 7.5 लीटर्स। 7.5 लीटर्स रेशियो लिया है 15 लीटर्स। 15 लीटर्स और वो जो है इक्वल है इससे 5 kg एंड 10 kg। 5 kg रेशियो 10 kg। चलो सेम लेना है हमको। 7.5 का रेशियो 15 से लेना है। अभी यहाँ पे आपका नॉलेज डेसिमल फ्रैक्शन वाला है ना, तो डेसिमल फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें कैसे दर्शाना है, कैसे लिखेंगे? 7.5 है तो 7/10, तो 5 कहाँ गया? 75/10 डेसिमल फ्रैक्शन हम पढ़े हैं। अगर डेसिमल के बाद एक नंबर है तो डिनोमिनेटर में 10 आता है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो डिनोमिनेटर में 100 आता है। डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो डिनोमिनेटर में 1000 आता है। सो यहाँ पे 7.5 है, तो ये इंस्टेड ऑफ 7.5 आई रोट 75/10 and 15 is already in the denominator, so it will come in the multiplication form. तो ये कैसे आया? तो सिर्फ मैंने क्या किया, 75/10 लिखा और 15 मल्टीप्लिकेशन में क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या है, तो 7.5 का मल्टीप्लिकेशन है 1/15 के साथ। आर यू कन्विंस्ड विद दिस? यहाँ पे बेसिकली क्या है, तो 7.5 का मल्टीप्लिकेशन है किससे? 1/15 के साथ। तो अभी मैं क्या करूँ इसका, तो 75/10 लिखूँ, उसको मल्टीप्लिकेशन है 1/15 से। ठीक है, तो उसको मैं सिंप्लीफाई करूंगी, तो 75/10 मल्टीप्लाई 15, जो कि यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया।
Now we have to simplify it. तो 15 5 is 75. Do you know? पता है कि नहीं पता? Yes. और यहाँ पे आ गया 50 मल्टीप्लाई 10. तो ये दोनों क्या है? कॉमन. क्या हो गया? 5 5 ratio 10. 5 ones are 5, 5 is a 10. 5 is a common, so 1 ratio 2. ये रेशियो आपको तब तक ढूंढना है जब तक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में ओनली 1 इज अ कॉमन फैक्टर. जब तक वहां पे कोई ना कोई कॉमन फैक्टर है तब तक आपको सिंप्लीफिकेशन करना. एंड देन नेक्स्ट इसमें क्या किया हमको 5 kg एंड 10 kg. तो वो क्या हो गया 5/10. 5 ones are 5, 5 is a 10, 1 ratio 2. So both the ratios are Equal. same. So that's why the given statement is True. Okay, ma'am. got it? Yes, ये हो गया ma'am. क्वेश्चन नंबर 3. एंड क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम थिंग है. Yes, ma'am. वहां पे आपको अगर यूनिट सेम नहीं है तो यूनिट बदलना पड़ेगा. एंड दैट इज इन द लास्ट वन डी में है मिलीलीटर एंड लीटर. हाँ. तो लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करके वो करना होगा. Okay, ma'am. अगर कहीं पे अभी प्रॉब्लम है तो यू कैन वॉच द वीडियो Yes, ma'am. and you can do it. But today without pay you people have to complete 12.2. Yes, ma'am. Second announcement. After completion of this chapter, अभी यहाँ पे एक ही टॉपिक बाकी है unitary method. Yes, ma'am. So we need only 2 or 3 periods to complete this chapter. After completion of this chapter, we are going to start chapter number 14, which is practical geometry. मैं 13 नंबर का चैप्टर अभी स्किप कर रही हूँ. रीजन इज दैट कि कोरोना के रीजन से कोई भी परिस्थिति कभी भी आ सकती है. ज्योमेट्री ऐसा सेक्शन है कि क्लासरूम में जितना आप समझ पाओगे उतना आपको वीडियो में समझ नहीं आएगा. तो हम पहले ज्योमेट्री कर लेंगे, बाद में 13 चैप्टर वो इजी है. सिमेट्री इज इजी शेप को देख के ही करना है सब. बराबर. लेकिन इसके लिए आपको ज्योमेट्री बॉक्स की जरूरत पड़ेगी. तो मैं अनाउंसमेंट एडवांस में इसलिए कर रही हूँ कि जिनके पास ज्योमेट्री बॉक्स पूरा प्रोट्रैक्टर राउंडर सब कुछ चाहिए वहाँ पे. प्रोट्रैक्टर राउंडर सब कुछ वहाँ पे चाहिए. अगर आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है तो 2-3 दिन में वो अवेलेबल कर देना. और 2 दिन के बाद वो कंपास बॉक्स साथ में रखना बैग में, तभी आप ज्योमेट्री सेशन क्लास में कर पाओ. समझ में आया? तो आज का होमवर्क क्या है? 12.2 पूरा कंप्लीट करना